children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Microsoft PowerPoint 2010. Chapter outline. Microsoft PowerPoint presentation and its features, starting Microsoft PowerPoint, components of Microsoft PowerPoint, creating a new presentation, adding text into a placeholder, saving a presentation, closing and exiting a presentation, opening a presentation, adding a new slide, adding pictures to the title and content slide, running a slideshow. Microsoft PowerPoint presentation and its features. Microsoft PowerPoint is a presentation graphics software developed by Microsoft. It is an integral part of the Microsoft Office suite of applications. PowerPoint is used to create and display beautiful presentations that include text, pictures, charts, diagrams, audio, video and animated special effects. देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट आपका प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट ऑफ एप्लीकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसकी हेल्प से देखिए हम ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपके टेक्स्ट हो, चार्ट्स हो, डायग्राम्स होते हैं, ऑडियो विजुअल होते हैं, राइट. प्रेजेंटेशन. Presentation is a collection of slides arranged in a systematic order that displays information along with graphics, sounds and animation. Presentation actually आपकी collection होती है slides की जो एक systematic order में arranged होते हैं जो कि information को आपको display करते हैं graphics के साथ, sounds के साथ, animation के साथ. Slide. A slide is like a page of a PowerPoint presentation that displays a brief information about a topic. How is a PowerPoint presentation helpful? A PowerPoint presentation is widely used to effectively present views and ideas. People in the business world use it to present information about their company or products in seminars and meetings. Teachers use presentations to prepare their lesson plans. By using PowerPoint presentation, you can create a visual impact on the audience. देखिए स्लाइड जो है ना आपका ये पेज होता है, पेज की तरह होता है PowerPoint presentation का जो एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देता है किसी टॉपिक के ऊपर. अब ये प्रेजेंटेशन कैसे हेल्पफुल होती है PowerPoint presentation? तो सबसे पहले तो इसको यूज़ किया जाता है ताकि हम अपने व्यूज़ और आइडियाज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें. ओके जो बिजनेस वर्ल्ड में होते लोग वो इस अपनी जैसे कंपनी की इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना चाहते हैं या किसी प्रोडक्ट को के बारे में प्रेजेंट करना चाहते हैं सेमिनार्स या मीटिंग्स में तो उसका यूज़ करते हैं. टीचर्स प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं अपने लेसन प्लान को प्रिपेयर करने के लिए. और जैसे कि अगर हम पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ करें तो हम एक विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं ऑडियंस पे. ओके स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट. टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट फॉलो द गिवन स्टेप्स. अब देखिए आप स्टार्ट कैसे करेंगे. सबसे पहले you will click on the start पे click किया, then choose all programs, then click करेंगे हम Microsoft Office पे and then इसमें से देखिए choose करेंगे हम Microsoft PowerPoint 2010. On starting Microsoft PowerPoint, a blank representation named presentation one appears on the screen. अच्छा जैसे ही आपका Microsoft PowerPoint स्टार्ट होगा देखिए एक blank representation आपका जिसमें लिखा होगा presentation one appear हो जाएगा स्क्रीन में. ओके अब देखिए इसमें आपके हैं लेफ्ट में फाइल टैब, देन ऊपर है क्विक एक्सेस टूल बार, टैब्स, रिबन, देन ग्रुप्स. अब देखिए यहाँ पे आपका क्लिक टू ऐड टाइटल और नीचे है आपका स्लाइड पेन, ये आपके प्लेस होल्डर्स हैं. ओके देन लास्ट में आएंगे हम राइट साइड जूम स्लाइडर, स्टेटस बार, क्लिक टू ऐड नोट्स, ये आपका नोट पेन है एंड देन ऊपर है आपका आउटलाइन टैब्स एंड स्लाइड्स टैब. ओके Component of Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint consists of the following components. Title bar. It displays the name of the presentation which you are currently working on. जैसे कि आपकी कोई भी presentation है उसको आपने जो नाम दे रखा है वो display होगा आपका. Okay. Quick access toolbar. It contains the frequently used commands. You can place this toolbar either above or below the ribbon. To do so, click on the drop-down arrow at the end of the toolbar and select Show below the ribbon option. To add items to the Quick Access toolbar, right-click on any item on the ribbon and click on Add to Quick Access toolbar. देखिए इसमें ना आपके जो आप frequently use करते हैं कमांड्स वो होती हैं तो आप इस टूल बार को प्लेस कर सकते हैं रिबन के ऊपर या नीचे में. ठीक है और ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे देखिए
क्लिक करेंगे आप ये जो ड्रॉप डाउन एरो है ना टूल बार के एंड पे, और हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे शो बिलो द रिबन ऑप्शन। ओके, और अगर आपको कुछ आइटम्स ऐड करने हैं इस क्विक एक्सेस टूल बार पे, तो आप किसी भी आइटम पे राइट क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार ribbon. The ribbon is placed at the top area of the document. It displays several tabs such as File, Home, Insert, Design, Transitions, Animations, etc. Each tab contains commands which are organized into different groups. आपके जो रिबन है टॉप एरिया में है डॉक्यूमेंट के, ये बहुत सारे टैब्स को डिस्प्ले करता है, जैसे फाइल है, आपका डिज़ाइन है, ट्रांजिशन है, बहुत सारी चीज़ें। ओके, और हर टैब में कमांड होती है जो कि आपके डिफरेंट ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज्ड होती है। फाइल टैब, द ऑफिस बटन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द फाइल टैब। This menu allows us to create a new presentation, open an existing presentation, save, print, send or close the presentation. जो ऑफिस बटन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 का, उसको अब रिप्लेस कर दिया गया है फाइल टैब द्वारा। ओके, तो इस मेन्यू से हम न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, या फिर प्रेजेंटेशन को क्लोज कर सकते हैं। Slides pane. It is on the left side of the window where you can work directly on individual slides. ये आपके विंडो के लेफ्ट साइड में होता है जहाँ पे आप डायरेक्टली वर्क कर सकते हैं इंडिविजुअल स्लाइड्स पे। Slides tab. It shows a thumbnail version of each slide. If you want to see the large view of any thumbnail, click on it. The selected slide appears in the Slides pane. You can add, delete, duplicate and rearrange slides in the Slides tab. ये हर स्लाइड का ना थंबनेल शो करता है। अगर आप इसका लार्ज व्यू चाहते हैं तो आप थंबनेल पे जस्ट क्लिक कर दीजिए, तो जो सिलेक्टेड स्लाइड है वो आपके स्लाइड पेन पे अपीयर हो जाएगी। इसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट, रीअरेंज कर सकते हैं स्लाइड्स को। स्लाइड्स टैब है। स्मार्ट टिप, टू क्रिएट अ शॉर्टकट फॉर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ड्रैग इट्स आइकन फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू टू द डेस्कटॉप। देखिए, आप शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लिए, तो आप क्या करेंगे, इसके आइकन को ड्रैग करेंगे स्टार्ट मेन्यू से डेस्कटॉप तक। ओके, आउटलाइन टैब, द आउटलाइन टैब डिस्प्लेज द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ ईच स्लाइड। यू कैन एडिट योर टेक्स्ट डायरेक्टली इन द आउटलाइन व्यू। तो देखिए, जो आउटलाइन टैब होता है ना, वो क्या डिस्प्ले करता है, टेक्स्ट कंटेंट को हर स्लाइड के। तो आप अब क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं डायरेक्टली आउटलाइन व्यू में। नोट्स पेन, in the notes pane, you can type your personal notes about the current slide. During a slideshow, this section is not visible to the audience, but a presenter can also view and read his explanation about the slide from this pane. देखिए, नोट्स पेन में आप क्या कर सकते हैं, पर्सनल नोट्स को लिख सकते हैं करंट स्लाइड के बारे में। तो जब स्लाइड शो होता है तो ये सेक्शन ऑडियंस को नहीं दिखता, बट प्रेजेंटर जो होता है वो उसे देख सकता है और अपनी एक्सप्लेनेशन को रीड कर सकता है जो उसके स्लाइड के बारे में होती है। नोट, प्रेसिंग द ऑल्ट की डिस्प्लेज अ शॉर्टकट की फॉर ईच टैब। टू ओपन एनी पर्टिकुलर टैब, प्रेस द ऑल्ट की अलॉन्ग विद द स्पेसिफिक शॉर्टकट की। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्ट प्लस एच की कॉम्बिनेशन ओपन्स द होम टैब। देखिए, अगर आप ऑल्ट की को प्रेस करेंगे तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, शॉर्टकट की हर टैब का। ओके, और किसी भी पर्टिकुलर टैब को ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑल्ट की को प्रेस करेंगे और उसके साथ कोई स्पेसिफिक शॉर्टकट की, राइट। जैसे कि ऑल्ट प्लस एच, ये जो कॉम्बिनेशन है इससे आपका ओपन होगा होम टैब। क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन, टू क्रिएट अ न्यू रिप्रेजेंटेशन फॉलो द गिवन स्टेप्स। क्लिक ऑन द फाइल टैब, न्यू ऑप्शन, द अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम्स पेन अपीयर्स। चूज द ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन, click on the create button or simply double click the blank presentation option. A new presentation with a blank slide will open in the PowerPoint screen. The default slide that appears when you create a new presentation is title slide layout, which displays the dotted rectangular boxes called placeholders. To add a new slide, click on the new slide button on the home tab. To change the layout of active slide, click on the layout button and select the desired layout from the list. तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे फाइल टैब, देन न्यू ऑप्शन
एंड देखिए ये जो अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम्स पेन अपीयर हो गया है। पर चूज़ करेंगे हम ब्लैक प्रेजेंटेशन, क्रिएट बटन पे क्लिक, या फिर हम सिंपली ना डबल क्लिक कर सकते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे। ओके, अब देखिए आपकी जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, ब्लैंक स्लाइड है आपकी ओपन हो गई है। दिस इज़ योर न्यू प्रेजेंटेशन। ओके ओके, अब ये जो डिफ़ॉल्ट स्लाइड है जो अपीयर हुई है ना जब हम ये न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं, ये आपका टाइटल स्लाइड लेआउट है। ये जो डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्सेस है जो डिस्प्ले हो रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं प्लेस होल्डर। अब न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू स्लाइड बटन पे क्लिक करेंगे और लेआउट को चेंज करने के लिए, ये जो हमारी स्लाइड है इसकी लेआउट को चेंज करने के लिए हम क्लिक करेंगे लेआउट बटन पे। फिर आप कोई भी डिजायर्ड लेआउट, ये जो लिस्ट है इसमें से सिलेक्ट कर देंगे। ओके, एडिंग टेक्स्ट इनटू अ प्लेस होल्डर। टू एड टेक्स्ट इनसाइड द प्लेस होल्डर, फॉलो दीज स्टेप्स। Click on the Click to Add Title Placeholder. The cursor appears in the text box. Type Artificial Intelligence. Click inside the Click to Add Subtitle Placeholder. Type A Cutting Edge Technology. You will notice the enter text appears on the slide. चलिए देखिए, अब हमको टेक्स्ट जो है वो ऐड करना है प्लेस होल्डर पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे क्लिक टू ऐड टाइटल प्लेस होल्डर पे। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपका कर्सर अपीयर हो गया। अब हम इस पर टाइप करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, इसके बाद हम क्लिक करेंगे, ये जो क्लिक टू ऐड सब टाइटल प्लेस होल्डर है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका क्या है टाइटल, फिर एक सब टाइटल। ओके, अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे कटिंग एज टेक्नोलॉजी। ओके, अब देखिए ये टेक्स्ट अपीयर हो गया स्लाइड पे, है ना। स्मार्ट टिप, टू रीसाइज द पिक्चर क्लिक ऑन द कॉर्नर साइजिंग हैंडल्स while holding down the mouse button, drag the sizing handle as per your need and release the mouse button. आपको पिक्चर को रीसाइज करना है तो आप क्लिक करेंगे ये जो कॉर्नर साइजिंग हैंडल्स है, ठीक है, जब और माउस बटन को होल्ड करना है और होल्ड करते टाइम पे ये साइजिंग हैंडल को ड्रैग करना है एज पर आर नीड। ओके, और फिर हम माउस बटन को रिलीज कर देंगे। Saving a presentation. It is important to save your work at regular intervals to avoid data loss because of any hardware or power failure. Follow these steps to save a presentation. अब देखिए आपकी जो presentation है आपने बना ली है, उसको सेव करना भी बहुत ज़रूरी है, राइट? तो कैसे करेंगे? Let's check out. Click on the Save button or select the File tab. Save option. The Save as dialog box appears. Specify the name, My Presentation. In the file name text box, click on the Save button. The presentation will be saved with the name My Presentation and with an extension .pptx. ओके, तो देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्लिक करेंगे हम सेव बटन पे, या फिर हम फाइल टैब पे ना सेव ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। अब आपका सेव एज डायलॉग्स बॉक्स अपीयर हो गया। फिर आप नेम लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया माई प्रेजेंटेशन, ये जो फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स है। फिर सेव बटन पे क्लिक करेंगे और अब हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो सेव हो गई है माई प्रेजेंटेशन के नाम से। और देखिए एक्सटेंशन है इसका .pptx। स्मार्ट टिप, F5 इज़ अ शॉर्टकट की टू रन अ प्रेजेंटेशन। कोई भी प्रेजेंटेशन को अगर आप रन करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की है F5। ओके, क्लोजिंग एंड एग्जिटिंग अ प्रेजेंटेशन। Closing a presentation, click on the File tab, close option. The presentation will be closed, but the PowerPoint application window will remain open. आपको अपनी presentation को close करना है। Simply आप क्या करेंगे, देखिए क्लिक करेंगे हम File tab पे, then close option पे। अब हमारा presentation close हो गया, लेकिन PowerPoint application वो still open है। Okay? Exiting a presentation. To close or exit the PowerPoint application, click on the close button on the title bar or click on the File tab and select the exit option. The Microsoft PowerPoint application will be closed. अब आपको प्रेजेंटेशन को क्लोज करना है या उसको एग्जिट करना है। सबसे पहले आप क्लोज बटन, ये जो क्रॉस का साइन होता है ना आपका टाइटल बार में, हाँ इसको हमने क्लिक किया, या फिर दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम क्लिक करेंगे फाइल टैब पे और एग्जिट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ये हमारी जो एप्लीकेशन है ये क्लोज हो गई है, राइट? नोट, A slide layout refers to the general arrangement of various components on the slide. जो slide layout होता है वो क्या
प्रेफर करता है जो जनरल अरेंजमेंट होता है ना वेरियस कंपोनेंट्स का जो आपके स्लाइड्स पे होते हैं. ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन. देयर आर 3 ways टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन एज शोन बिलो. अच्छा, आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन करना चाहते हैं तो उसके 3 तरीके हैं, 3 ways हैं. तो देखिए सबसे पहले क्या है आपका है नंबर 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब. हमने फाइल टैब पे क्लिक किया, देन ओपन ऑप्शन. और दूसरा मेथड क्या है देखिए, क्लिक ऑन द ओपन बटन. ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है इसके जो ओपन बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे और ये ओपन हो गया. स्मार्ट टिप. द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इज Ctrl+N की कॉम्बिनेशन. न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+N. Following either of the 2 methods, 1 or 2 will open the dialog box as shown in figure 8.8. Select any file, example activities of the month as shown in the given figure and click on the open button. Using method 3 as shown in figure 8.9, the browse dialog box will appear. Select the file and click on the open button. अच्छा देखिए थर्ड मेथड आपको फिगर 8.9 में दिया गया है. इसमें क्या होगा कि आपका ब्राउज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, फिर हम फाइल को सिलेक्ट करेंगे, देन हम ओपन करेंगे और ये आपका ओपन हो जाएगा. ओके. नोट, प्लेस होल्डर्स आर द डॉटेड और हैश मार्क्ड बॉर्डर्स दैट आर पार्ट ऑफ मोस्ट स्लाइड लेआउट्स. दीज बॉक्सेस कैन contain title and body text or objects such as charts, tables, pictures, etc. जो पेज होल्डर्स हैं आपके ये डॉटेड बॉर्डर्स होते हैं जो कि स्लाइड लेआउट का पार्ट होते हैं. इन बॉक्सेस में आपका टाइटल होता है या बॉडी टेक्स्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि चार्ट है या टेबल्स है या फिर पिक्चर्स है. ओके. स्मार्ट टिप. We can also save our presentation using the Ctrl+S की combination. अपनी प्रेजेंटेशन को हम सेव करना चाहते हैं तो हम शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं Ctrl+S. Smart tip. To view the presentation of a particular slide, open that slide and press Shift+F5 की combination. आपको कोई प्रेजेंटेशन देखना है किसी पर्टिकुलर स्लाइड का तो आप उस स्लाइड को ओपन करेंगे, फिर प्रेस करेंगे Shift+F5 की. Adding a new slide. While creating a presentation, you may need to insert new slides in it. You can add any number of slides to your presentation as needed. Whenever we add a new slide in a presentation, we must select its layout first. देखिए आप जब भी आप presentation create कर रहे हैं आप बहुत सारी न्यू स्लाइड्स को इंसर्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. ओके. तो जब कभी भी आप प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड ऐड कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका लेआउट सिलेक्ट करना पड़ेगा. ओके. ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, एग्जाम्पल my presentation. Click on the drop down arrow next to the new slide button in the slides group on the home tab. A list of available slide layouts is displayed. Click on the desired layout. PowerPoint will show a new slide with the selected layout in the center of the PowerPoint window. The new slide can also be seen in the slides tab on the left. तो देखिए आपको करना क्या है, कोई भी existing presentation हम open करेंगे जैसे example my presentation. Okay. अब ये जो न्यू स्लाइड बटन है ना, इसके जो नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन एरो, इसको क्लिक करेंगे. बहुत सारी देखिए लिस्ट अवेलेबल है हमारे पास स्लाइड लेआउट की. अब जो लेआउट हमें चाहिए हम उस पर क्लिक करेंगे. ओके. अब देखिए पावर पॉइंट एक न्यू स्लाइड शो कर रहा है जो हमने लेआउट सेलेक्ट किया था. ओके. और इस न्यू स्लाइड को आप देख सकते हैं स्लाइड्स टैब में जो लेफ्ट साइड में है, राइट. ये आपको यहाँ पे नजर आएगी. Adding pictures to the title and content slide. Insert the title and content slide to the presentation. Click on the Insert tab and select the picture option from the Images group. The Insert Picture dialog box opens. Choose a folder where pictures are stored. Select a picture by clicking it or by typing the file name. Click on the Insert button. The picture will appear on the slide. चलिए देखिए पिक्चर्स हमें ऐड करने हैं टाइटल और कंटेंट स्लाइड पे. इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड. ओके. क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे और सिलेक्ट करेंगे पिक्चर ऑप्शन. ओके. अब देखिए जो इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स से ओपन होगा. अब फोल्डर चूज करना है जहाँ पे पिक्चर को स्टोर करना है. पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे बाय क्लिकिंग इट या फिर हम फाइल नेम को भी टाइप कर सकते हैं. अब हम क्लिक करेंगे इंसर्ट बटन पे एंड ये जो पिक्चर है ये स्लाइड पे अपीयर हो गई. ओके. Running a slideshow.
Microsoft PowerPoint provides the option of combining all the slides of a presentation into a slideshow. It is just like the picture in a photo album. It displays all the slides in a presentation one by one on the screen. To run a slideshow, follow the steps given below. देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो स्लाइड्स हैं आप उनको कंबाइन कर सकते हैं प्रेजेंटेशन की स्लाइड शो। फिर मतलब एक पिक्चर ये आपके फोटो एल्बम की तरह होता है जिसमें आपकी पिक्चर्स होती हैं, तो ये सारी स्लाइड्स को वन बाय वन स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। तो चलिए कैसे हम स्लाइड शो रन कर सकते हैं, लेट्स चेक आउट। Click on the slideshow tab and select any one of the following options in the Start Slideshow group. From beginning, start the slideshow from the first slide. From current slide, start the slideshow from the slide you are currently working on. Custom slideshow, it displays only the slides you select. And broadcast slideshow, this feature broadcasts a slideshow to remote viewers who can watch it through a web browser. देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे स्लाइड शो टैब पे और इनमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जो स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप है ना, जैसे फ्रॉम बिगिनिंग है, इसको सिलेक्ट किया तो आपका स्लाइड फर्स्ट स्लाइड से शुरू होगा। करंट स्लाइड अगर आप चूज़ करेंगे तो स्लाइड आपका जो आप जिस पे करंटली आप वर्क कर रहे हैं ना वहाँ से स्टार्ट होगा। और कस्टम स्लाइड शो में ये सिर्फ उसी स्लाइड को डिस्प्ले करेगा जिसको आप सिलेक्ट करते हैं। एंड ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो में क्या होगा कि ये स्लाइड शो को ब्रॉडकास्ट करेगा रिमोट व्यूअर्स को जो कि इसे देखेंगे वेब ब्राउजर के थ्रू। ओके, रीकैप। A presentation is a collection of slides arranged in a systematic order that displays information along with graphics, sound, and animation. A slide is like a page of a PowerPoint presentation that displays some information related to the topic. This Slides tab shows a thumbnail version of each shown in the slides pane. Microsoft PowerPoint 2010 saves a file with an extension .pptx. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।